ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، گجران والے کو پریشان نہ ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک ڈکٹیٹروں نے سیاستدانوں کو انہی تمغوں سے نوازا ہے. کبھی مادر ملت فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا، کبھی حسین شہید سہر وردی کو غدار ٹھہرایا گیا، کبھی باچا خان اور مولوی فضل الحق ملک دشمن قرار پائے، کبھی مری، کبھی مینگل اور کبھی بزنجو غدار بنے. اور جب یہ الزام مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کھلے عام انتہائی ذلت آمیز طریقے سے ہتھیار ڈالے. لیکن غدار کون ہے؟ سیاستدان. غدار کون ہے؟ نواز شریف. غدار کون ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو. غدار کون ہے؟ ولی خان. غدار کون ہے؟ اکبر بگٹی یا پھر محمود خان اچکزئی جو ہمیشہ دستور اور آئین کی بات کرتا ہے. اور کون غدار ہے؟ یہ سب لوگ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب قائدین، سب غدار ہیں، کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. اور محب وطن کون ہے؟ محب وطن کون ہے؟ جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے آئین کو روند ڈالا، جنہوں نے ملک کو دو ٹکڑے کر دیا، یہ سب محب وطن ہیں. اور پھر جنرل عاصم سلیم باجوہ جو کہ پاکستان کی حکومت گرانے، بلوچستان کی حکومت گرانے اور سینٹ کے انتخابات چوری کرنے کے جرم میں سنگین غداری یعنی آرٹیکل 6 کا مجرم بھی ہے. اس کے بے حساب اثاثے سامنے آ چکے ہیں مگر کوئی تفتیش شروع نہیں ہو سکی. اس حکومت کے ہوتے ہوئے شاید ہوگی بھی نہیں. نیب کا وتیرہ تو الزام اور ثبوت کے بغیر ہی اٹھا کر لے جانا ہے. یہ شخص کیوں کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے؟ جواب تو عمران نیازی کیوں پھر رہا ہے اور آج بھی وہ چیئرمین سی پیک بنا ہوا ہے؟ کس منہ سے یہ سی پیک کی سربراہی کر رہا ہے؟ اور اس کی تنخواہ 35 لاکھ روپے ماہانہ ہے. گجرانوالہ کے عوام بھائیوں، کیا تنخواہ ہے؟ 35 لاکھ روپے تنخواہ ہے اس شخص کی، جنرل عاصم سلیم باجوہ کی. کیا تنخواہ ہے؟ بتاؤ کیا تنخواہ ہے؟ اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن کرپشن کا ایک کے بعد دوسرا سکینڈل سامنے آ رہا ہے. اس کے باوجود چیئرمین نیب کی ڈٹائی دیکھیں، تمام تر گواہ اور ثبوتوں کے باوجود کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکا. نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے، مشرف کا بنایا ہوا کالا قانون ہے، جس کا مقصد سیاسی اختلاف رائے کو کچلنا ہے. لیکن جاوید اقبال اور اس کے ساتھیوں نے تو تمام حدیں پار کر لی. انہیں سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں اور پھر غیر ملکی اور غیر ملکی اداروں کی جانب سے کی گئی تنقید کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کا انتقامی ایجنڈا ختم ہونے کو ہی نہیں آتا. شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، خورشید شاہ، میر شکیل الرحمان اور اپوزیشن کے دیگر رہنما آج بھی پابند سلاسل ہیں.
उनको या खुद आपको भी यह मालूम नहीं कि उनका जुर्म क्या है। और जावेद इकबाल, कब तक आप एक मफाद प्रस्त टोले के मफादात के मुहाफिज बनकर बैठे रहोगे? कब तक उनके इंतजामी एजेंडे पर अमल करते रहोगे? कब तक बेगुनाहों को न्याय की चक्की में पीसते रहोगे? कब तक तुम इमरान नियाजी और आसिम बाजवा जैसों की करप्शन को तहफ्फुज देते रहोगे? याद रखो, तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा और बहुत जल्द आएगा। ये गुजरांवाला का जलसा, ये कायदीन, ये सब गवाह हैं, इंशाल्लाह गवाह रहना। इनका भी यौम हिसाब आएगा और जल्द आएगा। मेरे भाई और बहनों, आइन से इनराफ सिर्फ माशाल्लाह की शक्ल में नहीं होता। हर आइन शिकनी इंतहा दर्जे की संगीन होती है। लिहाजा जब जबरदस्ती मीडिया का मुंह बंद कर देते हैं, ये भी आइन शिकनी है। जब आप केबल ऑपरेटर्स को हरासा करके अपनी मर्जी के चैनल चलवाते हैं, तो ये भी आइन शिकनी है। जब आप जजों से जबरदस्ती मनपसंद फैसले लिखवाते हैं, तो ये भी आइन शिकनी है। आप अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं और एक नाअहल तरीन शख्स को वज़ीर आज़म बनवा देते हैं, तो ये बदतरीन आइन शिकनी है। याद रखिए, एक आइन तोड़ने वाले शख्स के साथ साथ वो तमाम लोग भी आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं जो उसकी मदद करते हैं या उसका हुक्म मानते हैं। गुजरांवाला के मेरे भाइयों बहनों, आज आपकी तमाम तर परेशानियों और तकलीफों का जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने आपको अपने जाती मफादात और इख्तियारात की भींट चढ़ाया है। यही वो लोग हैं जो तमाम मसाइल के जिम्मेदार हैं, और यही वो लोग हैं जो अपने मफादात के लिए पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने के दरपे हैं। हम नहीं, अवाम नहीं, ये हैं वो चेहरे जो पाक फौज को बदनाम करते हैं और मुतनाज़ा करते हैं। नवाज शरीफ का उन बहादुर कौम के बेटों और सिपाहियों को सलाम जो फलक पोश पहाड़ों और सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कल ही वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में 20 शहादतें हुई। कौम का हर फर्द सोगवार है। मेरे ये मुजाहिद भाई और बेटे, ये शहीद और शोहदा, ये फौज की इज्जत बनाते हैं, ये कौम की इज्जत बनाते हैं। इन्हें कौम सलाम पेश करती है। इनकी माओं को, इनके वालिदैन को कौम सलाम पेश करती है। तुम कौम के हीरो हो। नवाज शरीफ तुम्हारा एहसान मंद है। कौम तुम्हारी ममनून है। कौम तुम पर फख्र करती है। मगर चंद लोग कहते हैं कि हम आइन और कानून के ताबे हैं और सियासत में हिस्सा नहीं लेते। तो फिर मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई करके नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, हुकूमत को तोड़ा था और उठा के नवाज शरीफ को काल कोठरी में डाल दिया था? वो कौन लोग थे जिन्होंने 4 दफा मुल्क में मार्शल लगाया? कौन थे वो लोग? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने स्टेट अबव द स्टेट बना ली हुई है?
कौन इसका जिम्मेदार है? मुल्क में दो मुतवाजी हुकूमतों का कौन जिम्मेदार है? जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी जो कह रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार है? मेरे पास वो वीडियो है जो किसी वक्त मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं ट्विटर पे फिर डालूंगा, उसको आप सुनिएगा वो क्या कह रहा है। जैसे काजी फायदी साहब और उनके अहले खाना के साथ होने वाली नाइंसाफियों का कौन जिम्मेदार है? इस मीडिया की जुबानबंदी का कौन जिम्मेदार है? सेनेट के इंतखाबात पर डाका डालने का कौन जिम्मेदार है? इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग का कौन जिम्मेदार है? सहाफियों को अगवा करके तशद्दुद करने का कौन जिम्मेदार है? इमरान नियाजी की इस नाइल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको बिजली का बिल बिजली बनकर बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब मर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। बाजवा साहब, आप इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। जवाब आपको देना होगा। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों पर उदासी है, वीरानी है, परेशानी है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। आटा और चीनी चोर अवाम के सैकड़ों अरब रुपए लूट कर चलते बने और हुकूमत ने कीमत काबू में लाने के लिए कुछ नहीं किया। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा। आपको और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है। जवाब भी आपको देना होगा।